Hello students, now we are discussing about MS Word and we are just summarize it. Summary we are discussing. MS Word basically it is used for word processing software, like if you want to write it letter, application, any official document or anything you want to write it in the form of document, then you can use it MS Word. MS Word is a part of MS Office and this is used for documentation, book writing, document office applications. We can use it. So the thing is that the creation, editing, formatting, storage, organization, production of text document by means of computer system is starts with word processing. That means you can write the word, you can edit the word, you can format the word. The meaning of format is bold, underline, italic, alignment, font color, font name, font size, uh, apply a font, all the activities. These are the meaning of formatting. Storage, that means the data which we can store it. And main important thing, word processor is a application software for creating, editing, formatting and printing any sort of document. इसी तरह की document को वो format करता है और process करता है. So Microsoft Word is a part of MS Office. It is an application software. Its component are very useful. MS Office component are very useful, very important. And now we come to the next key, which are which activities we have to perform it. We can move the text, that means cut the text, we can copy the text, we can write the text, we can edit the text, we can apply different types of formatting text. The list are bullets, we can use it, number line bullets, use it, uh, and without number line bullets we can use it. So bullets is used for if you want to write any document with a uh, proper sequence, then you can use it, that uh, bullets. And one more important thing is header. Header is always comes on the top of the document, and footer always comes on the bottom of the document. So this is the thing, header and footer. Header is also important. Header includes title, section, uh, title, section, page number, date and time, image, page number, and same thing footer applied, page number, document, write, text, image. Header always come at the top of the document of the every page. Footer always come at the bottom of the document of every page. We can also insert like pictures, word art, shapes, symbols in document. Word art is also used for uh, documentation purpose. Features are also available. Shapes, drawings can be inserted and edited, manipulated using various tools. Actually, shapes, we can, different shapes are there. We can use it. Symbol method, simple mathematical symbol, we can use it. Equation, we can use it. MS Word allow you to insert tables in a document and perform various operation on tables to let you manage data that they contain. Text changes tool is used when document is edited or reviewed by many people in collaboration and changing made by each person. So whatever we are writing it, we can use it on a text. So these are the summary. Now we can discuss about fundamental of MS Word and all these things. MS वर्ड में बेसिकली हम कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा काम करते हैं. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसर क्या होता है. तो वर्ड प्रोसेसर को मैं बता रहा हूँ. वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर that allow us to create, edit, view, format and print text document. In the computer, most widely used computer word processing software is MS Word, Word Perfect, Word Star. ये सब सॉफ्टवेयर है
MS वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब एग्जैक्टली होता ये है, ये जो वर्ड प्रोसेसर का मतलब है वर्ड को प्रोसेस करना मतलब एडिट करना, क्रिएट करना, व्यू, फॉर्मेट और प्रिंट करना, ये हम देख रहे हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर जो है, वर्ड स्टार पहले आता था डॉस बेस, एक सॉफ्टवेयर होता था, आजकल यूज नहीं होता है। और वर्ड प्रोसेसिंग का और सॉफ्टवेयर है MS वर्ड है। इसके अलावा ओपन ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जो लाइनक्स बेस है। ये वर्ड प्रोसेसर जो है बेसिकली MS ऑफिस इसका MS ऑफिस में MS वर्ड इसका एग्जाम्पल है। तो ये देखने वाली बात आ रही है। अब हम यहाँ, ये वर्ड प्रोसेसर होता है MS वर्ड, और इसको हम देख रहे हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ बताने के साथ साथ मैं आपको PDF में बता रहा हूँ, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मैं आपको दोनों जगह चेक करा रहा हूँ। ये अब ये है क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप यहां देखोगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये मैं यहां ये क्विक एक्सेस टूल, ये फाइल टैब है। एक मिनट, ये फाइल टैब, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये लिखा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको नीचे कर लेते हैं। ये आपको यहां समझाने के हिसाब से ये स्क्रीन, ये क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, ये क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया, ये फाइल टैब है। ये फाइल टैब यहाँ पे क्लिक कराएं, ये फाइल टैब है। तो आगे देखते जाएं, ये टाइटल बार, तो ये जो होता है ये पहला वाला है, टाइटल बार होता है। ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर जो लिखा ना एक्टिवेशन फेल, ये टाइटल बार है। नॉर्मली ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। फिर ये मिनिमाइज का बटन, ये क्लोज का बटन, ये मैक्सिमाइज का और रिस्टोर का बटन आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आप करते हुए आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है बताने लायक। ये टाइटल बार हो गया, मैंने आपको बता दिया। फिर हाँ, ये जो होता है ये रूलर कहलाता है। ये रूलर मतलब स्केल हमारे हिसाब से। फिर यहां से हम लिखते हैं कोई भी चीज को, जैसे इसको हम हटाएं वर्ड प्रोसेसर को, तो हम यहां से लिखते हैं। यहां से लिखते हैं, ये इंसर्ट पॉइंट हो गया यहाँ, ये वाला जो पॉइंट हो गया इंसर्ट पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ से लिख रहे हैं। ये दिख रहा है ना स्केल, इसके नीचे से आप लिख पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे ये रूलर है, इसके यहाँ से नहीं लिख पाएंगे हम। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको जो चीजें बताई मैंने। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, बात करते हैं विंडो के हिसाब से। डॉक्यूमेंट विंडो, यहाँ पर आप लिखेंगे। अच्छा, नीचे जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार होता है, इसको मैं बता देता हूँ। ये वर्टिकल बार, और नीचे जब आप उसको पूरा जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल बार। ये हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे ऑप्शन में आएगा। ये ऑप्शन में सारी सेटिंग्स होती हैं।
ये ऑप्शन में सारी सेटिंग्स होती है और वो किसी डॉक्यूमेंट को हम ओपन करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये व्यू, ये ग्रिड लाइन, तो ये जितनी चीजें मैंने बताई आप ध्यान में रखने वाली बात है। इसको मत चलाना, ये मत चलाओ। आगे बढ़े हम। हॉरिजॉन्टल व्यू बटन, जूम लेटर। हाँ, व्यू बटन और जूम लेटर को मैं आपको बता देता हूँ। ये जूम 100%, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये 100%, ये कम दिख रहा है। फिर ये प्रिंट लेआउट है, ये फुल स्क्रीन है, इस पर फुल स्क्रीन हो जाएगी, ये फुल स्क्रीन हो गई। एस्केप कर देंगे तो वापस हट जाएगी। पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। जूम मैंने बता दिया और वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो शॉर्टकट है, जो आपको याद रखने लायक है, वो मैं बता देता हूँ। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ उसकी शॉर्टकट है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ये जैसे हॉरिजॉन्टल बार यहाँ दिख रहा है, ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ, नया बनाना है तो कंट्रोल एन, सेव करना है तो कंट्रोल एस, प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, और F1 से हेल्प है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल डब्ल्यू। मैं बता देता हूँ आपको इसको चला के। कंट्रोल ओ से ओपन करी हमने, ये फाइल ओपन हो गई, जिसकी भी फाइल आपको ओपन करना हो, नंबर 1। फिर मैंने करा कंट्रोल एन, अब आप देखोगे ऊपर तो कंट्रोल एन, ये नई फाइल बन गई। अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि नई फाइल बनी है? ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये आ गई नई फाइल, ये डॉक्यूमेंट 2 आ गया। क्लोज करना है कंट्रोल डब्ल्यू, ये क्लोज हो गई। 3 बता दिए मैंने, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल एस से फाइल सेव होगी, ये फाइल सेव होगी। आपको सेव करना है तो कर सकते हैं, ये मैंने जैसे करा। और कंट्रोल एस, अब कंट्रोल एस मैंने करा तो जहां आपको सेव करना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड का, एक्सेल का, वो डॉक्यूमेंट या आपके पास पुराना वर्जन है तो माय डॉक्यूमेंट में सेव होता है। इस बात को ध्यान रखें आप, इस बात को ध्यान रखें कि वो डॉक्यूमेंट या माय डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है, ये बात ध्यान रखें। तो ये हमने MS वर्ड फाइल टेम्प करके कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही अभी आप इसको देखें, अभी यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, अब आप सेव करेंगे तो देखो क्या लिखा है, MS वर्ड टेम्प। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर किसी भी चीज की हेल्प देखना तो F1 लगाएंगे हम। जैसे वर्ड में अपने को हेल्प देखना है तो MS F1 लगाएंगे, F1, ये F1 से आपको कुछ भी, जो भी आपको वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ये आप उसमें यहाँ पे सर्च करो। ऑनलाइन है ये, नेट वगैरह ऑन होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। टेबल से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड मैंने क्लिक करा, एड और डिलीट टेबल, ये इंसर्ट टेबल करना है, मतलब हेल्प है। आप अगर कहीं अटक जाओ या कुछ हो जाए तो बात अलग है। तो कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से प्रिंट। मैं आपको कंट्रोल पी करके बता देता हूँ, कंट्रोल पी। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से है ये देखो, ये यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट है, सारे पेज करना है तो ऑल, करंट करना है तो करंट, करंट मतलब ये सिंपल। ये हालांकि उसका ऑप्शन है, वर्ड का ऑप्शन नहीं, वर्ड का ऑप्शन यहाँ से आएगा, कंट्रोल पी।
ये एमएस वर्ड का ऑप्शन आया, वो पीडीएफ के अंतर्गत ऑप्शन आ रहा था, इसलिए मैंने बार बार वो हटाया था। ये एमएस वर्ड का है। यहाँ प्रिंट देना है, कॉपीज कितनी निकालना है, प्रिंट A4 काय में देना है, एस्केप कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आगे अब हम देखें उसमें, उस नेविगेशन के हिसाब से पेज अप, पेज डाउन, होम एंड, कंट्रोल एंड, F5। पेज अप पेज डाउन तब वर्क करते हैं जब आपका एक से ज्यादा पेज लिखा हुआ हो। अब अपन कोई भी चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। ये मैंने कुछ पेजेस ये कर दिए, अब ये 2 पेज हो गए। अब यहाँ ये फर्स्ट पेज है, कैसे पता पड़ा, ये नीचे स्टेटस बार बताता पेज 1 ऑफ 2, मतलब टोटल 2 पेजेस है उसमें, ये फर्स्ट पेज पे और टोटल वर्ड्स लिखे 48। अब अगर आप पेज डाउन करोगे तो देखो सेकंड पेज आ गया, कैसे पता पड़ा सेकंड पेज आ गया, यहाँ स्टेटिक्स बताता है यहाँ पे पेज 2 ऑफ 2। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर अप करेंगे तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, तो पेज अप पेज डाउन, होम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उस पे चले जाएगा। एंड पे क्लिक करेंगे तो लाइन के एंड पे जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे तो लाइन के फर्स्ट उस पे जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात। जैसे ये इस लाइन के एंड पे, इस यहाँ पर मैं एंड प्रेस करूंगा END कीबोर्ड पे तो एंड पे जाएगा, और होम पे प्रेस करूंगा तो उस पे जाएगा। आपके घर पे सिस्टम हो तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप मोबाइल में भी वो सारी फैसिलिटीज हैं, कुछ ऑप्शंस अलग हैं। कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड, ये बिगिनिंग और एंडिंग के लिए। मान लो आप यहाँ पर हैं, आप सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल होम, कंट्रोल बटन है और होम बटन है, आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर जाएंगे, और कंट्रोल है और एंड है। अच्छा कैसे पता पड़ेगा, आप यहाँ गए तो ये नीचे आप देखें पेज 1 ऑफ 2 लिखा है, और कंट्रोल एंड करेंगे तो एंड में जाएंगे। ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड। फिर अब कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बताऊंगा अभी, इसको पहले सबसे पहले और दूसरी चीजें हम इसको समझें। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा इस अलग तरीके से समझाऊंगा। फिर बता रहा हूं, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये फाइल टैब, खाली फाइल में ही फाइल मेनू टैब है और बाकी नहीं है। होम, होम के ये ऑप्शन है, इनको बोला जाता है रिबन टैब। होम में ये रिबन टैब है होम की, मतलब ये रिबन टैब पे आप क्लिक करेंगे तो होम में ऑप्शंस आएंगे, कौन कौन से, फोंट, फिर क्लोज करा, फिर पैराग्राफ, मतलब ध्यान रखो कौन कौन सा ऑप्शन कहां से आते हैं। फिर स्टाइल, एडिटिंग, ये स्टाइल। अच्छा वो सारी चीजें यहीं ऊपर ही डिस्प्ले हो रही है। और क्लिपबोर्ड, मतलब होम में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, होम में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो शो हो रहे हैं। कौन कौन से, क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ भी मैंने बताया, होम, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। मतलब होम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये 5 चीजें हैं। अगर हम समझने की बात करें, मैं लिख देता हूं, होम, एरो, क्लिपबोर्ड, एरो, मतलब क्लिपबोर्ड, और क्या क्या है, फॉन्ट, और क्या है, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इनको आप बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया तो आपको हाईलाइट हो गए और दिख जाएंगे, ये दिख जाएंगे।
ये होम रिबन टैब है। फिर इंसर्ट रिबन टैब, इंसर्ट में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या क्या है? पेजेस, टेबल्स। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो रिबन टैब है इनका मकसद है, और मैं आपको जो एक बार बता रहा हूँ वो आपको हर बार के लिए क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। होम मतलब बेसिक चीजें, मतलब फॉन्ट कैसा होगा, पैराग्राफ की सेटिंग कैसी होगी, एडिट आप क्या कर पाएंगे, कट कॉपी पेस्ट, मतलब बेसिक चीजें। फाइल मेनू में जो होता है वो क्या होता है, नई फाइल कैसे बनेगी, फाइल ओपन कैसे होगी, क्लोज कैसे होगी, और फाइल सेव कैसे होगी, फाइल प्रिंट कैसे होगी, फाइल से बाहर कैसे आएंगे, और वर्ड से बाहर कैसे आएंगे। ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। ये देखो, आप फाइल टैब देखोगे तो फाइल टैब में यही है, न्यू से नई फाइल, प्रिंट से प्रिंट, सेव से सेव। अच्छा, ये जो हम वर्ड का वर्जन कर रहे हैं ना, ये एमएस ऑफिस के वर्ड का 2010 वर्जन है। एमएस ऑफिस में बेसिक 3 चीजें मेन आती है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और भी चीजें आती है, आउटलुक है, फ्रंट पेज है, ये सब भी आता है, बट सब अलग अलग एमएस ऑफिस के वर्जन के हिसाब से अलग अलग आता है। वर्ड जो काम आता है आपके एमएस वर्ड, वो डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के काम आता है, बुक बनाने के काम आता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, रिपोर्ट राइटिंग के काम आता है। ये सारी चीजें वर्ड में आती है। तो सेव, सेव एज, दोनों से सेव होती फाइल। एक बार आप सेव करो तो सेव होती रहेगी, सेव एज से एक और कॉपी बनाना तो बनेगी, ओपन से फाइल ओपन होगी, क्लोज से क्लोज होगी। क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू मैंने बताया, ओपन कंट्रोल ओ बताया, सेव कंट्रोल एस बताया, न्यू कंट्रोल एन बताया, प्रिंट कंट्रोल पी बताया। ये आप याद रख लोगे ना, तो जीवन भर, लाइफ लॉन्ग तक ये चीजें याद रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जिट से बाहर आप बाहर हो जाओगे। अब अभी अपन ने सेव नहीं करा, इसलिए मैं बाहर नहीं होना चाह रहा हूँ। अब कंट्रोल एस कर दिया मैंने, तो एक बार सेव कर देंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर आगे बढ़े हम। होम हो गया, हाँ। फाइल में मैंने फाइल टैब बता दिया। होम में बेसिक चीज, मतलब फाइल में न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, प्रिंट। बार बार मैं बोल रहा हूं आपको। होम में कट, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बुलेट, स्टाइल। स्टाइल मतलब फोन के अलग अलग स्टाइल लेना हो, हेडर में अलग लेना हो, चेंज में अलग करना हो, और एडिटिंग, फाइंड रिप्लेस कमांड यूज करना हो। ये होम के हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आने वाली बात है। फिर इंसर्ट। अब इंसर्ट में क्या होता है, हर चीज इंसर्ट करना। टेबल इंसर्ट करना, ये टेबल इंसर्ट करने के लिए ये कमांड है, ये रो और कॉलम को बताता है। फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, पिक्चर पे क्लिक करा, कोई भी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। फिर कोई स्क्रीनशॉट आपको इंसर्ट करना है तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ध्यान में रखना, मैं बता दूंगा उसको भी। फिर ये स्मार्ट आर्ट चार्ट इंसर्ट करना है, शेप्स इंसर्ट करना है। कोई भी शेप आपको लेना है, जैसे ये लेना है तो ये ले लिया आपने, ये शेप इंसर्ट हो गया। जैसे ही शेप इंसर्ट हुआ, ये फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट और डिजाइन नाम से नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, अगर आप कोई भी चीज इंसर्ट करते हो तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आगे बढ़े हम। इंसर्ट में ये आ गया। हेडर देना हो, हेडर मतलब हेडिंग। हेडिंग हमेशा टॉप पे आता है। हेडर मतलब हेडिंग टॉप पे आता है। हर पेज के टॉप पे जो होता है वो हेडर कहलाता है, हर पेज के जो बॉटम पे आता है वो फुटर कहलाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कोई भी चीज अगर आपको मालूम नहीं हो तो वहां जाके कर्सर रख दो। ये रख दिया आपने, हर जगह कहीं भी जाके कर्सर रख दो आप। यहाँ, यहाँ, ये यहाँ रखा। इंसर्ट ए, ड्रॉ ए टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। हर जगह आप यहाँ पे भी जाओगे, होम, इंसर्ट, इनके ऑप्शन से ही ये जैसे यहाँ रखा टेक्स्ट बॉक्स के लिए, इंसर्ट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स, पहले से ही जो फॉर्मेट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। फिर वर्ड आर्ट, इंसर्ट में जहां लिखा है वर्ड आर्ट,
मान लो इस शेप के अकॉर्डिंग आपको कुछ लेना है तो ये आ गया, यहाँ टेक्स्ट लिख दिया, आपको जो भी लिखना हो। ये थोड़ा सा आपको नए पेज पे लेता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंसर्ट, ये वर्ड आर्ट, ये लिया। जैसे मेरा नाम लिखा मैंने नीलेश, तो ये वर्ड आर्ट जैसे ही आया उसमें फॉर्मेट आ गया। अब आपको इसकी साइज बिगर लेना हो, कुछ अलग अलग फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन लेना हो, ये लेना हो, ये अलग अलग आ जाते हैं, फीलिंग शेप भी आ जाते हैं। देखोगे तो ये चीजें बहुत गहराई वाली है। कंट्रोल Z कर देंगे तो अंडू हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। अंडू मतलब आखिरी जो काम करा उसका ठीक अपोजिट। तो होम, इंसर्ट, इंसर्ट में ये इंसर्ट मतलब कोई भी चीज नंबर ऐड करना, कोई भी चीज इंसर्ट करना, एनीथिंग यू वांट टू इंसर्ट इट। पेज नंबर, फिर पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है, पेज से संबंधित चीजें डिस्प्ले होती है। क्या पेज से संबंधित चीजें डिस्प्ले होती है, मतलब पेज का एरिया कौन सा रहेगा। जैसे आप यहां पर आएंगे आप तो पेज सेटअप, जैसे इसमें ऑप्शन कौन कौन से, थीम, पेज सेटअप, मतलब आप पहले मैं अभी आपको ऑप्शन ही बता रहा हूँ। पेज सेटअप, पेज सेटअप में टॉप की मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सब जगह जो छोड़ते हैं ना, ये जगह छोड़ने के हिसाब से रहता है। ये लेफ्ट की जगह, ये राइट की जगह, ये टॉप की जगह, ये बॉटम की जगह, तो ये छोड़ना तो इंच में डिसाइडेड है। फिर पेपर आपने कौन सा लगाया, A4 लगाया। नॉर्मली A4 की साइज 8.27 इंटू 6.29 होती है। ये 8 इंच 0.27 और 11 इंच 0.69 इंच होती है। बैकग्राउंड, आपका पेज का बैकग्राउंड कौन सा लेना हो, वाटरमार्क लेना हो आपको, ये वाटरमार्क लिखा हुआ आता है ना बहुत जगह, तो वाटरमार्क लिख सकते हो। कस्टम अपना खुद का वाटरमार्क बना सकते हो, जैसे मेरे को मेरा बनाना है, ये बना दिया, ये लिखा हुआ आ गया नीलेश। हालांकि मैं सब चीजें वापस बताऊंगा, बट मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूं। हमने क्या क्या देखा, फाइल देखा, होम देखा, इंसर्ट देखा, पेज लेआउट। पेज लेआउट में ये सारे ऑप्शंस देखे। अच्छा एक बात बता दूं, वर्ड आप 2007 करो, 10 करो, कुछ ऑप्शंस का अंतर है। जैसे 10 में ये ऑप्शन है, फाइल बटन आया, 7 में ये ऑप्शन नहीं है। तो 10, 13, 16, 19 इन सब में ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इंसर्ट आ गया, पेज लेआउट आ गया। ये पेज लेआउट में ये सारे ऑप्शंस आ गए। फिर रेफरेंस, ये थोड़ा सा अलग है। बस रेफरेंस में अभी हम ये चीज समझे कि चीजें रेफरेंस लेने के लिए यूज होती हैं, कब कब कहाँ होती है ये अपन इसको बाद में देखेंगे। साइटेशन है, कैप्शन है, टेक्स्ट ऐड है, इंसर्ट फुट नोट है, ये सारी चीजें आती है इसमें। मेलिंग, ये भी इसमें मेल मर्ज यूज होता है। मेल मर्ज ऑप्शन के लिए ही यूज होता है। मेल मर्ज क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हमको कोई भी डॉक्यूमेंट मल्टीपल पर्सन को भेजना होता है, व्हेन यू वांट टू सेंड इट डॉक्यूमेंट इन ए मल्टीपल पर्सन, दैट टाइम वी कैन यूज इट मेल मर्ज। अब तो खैर वो ऑप्शन यूज नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें आप एक साथ मल्टीपल प्लेस पे भेज सकते हो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर रिव्यू, इसमें भी स्टेटिस्टिक्स बताता है, और स्टेटिस्टिक्स मतलब कितने वर्ड्स हैं। जैसे आपको वर्ड काउंट करना है तो ये वर्ड काउंट बता देगा। इस पर्टिकुलर फाइल में 2 पेज हैं, 54 वर्ड्स लिखे हैं, कैरेक्टर विद स्पेस 286 है, कैरेक्टर विदाउट स्पेस विद स्पेस 337 है, और पैराग्राफ 4 है, 20 लाइन 29 8 है। मतलब मैंने शॉर्ट में बताया, मैं फिर बोल रहा हूँ, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं किसी भी चीज को। मैंने इसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताए, कुछ इलोबरेटेड चीजें भी बताई, और कुछ ओवरऑल चीजें भी बताई। फिर व्यू में हर चीज दिखाना या करना, व्यू में कोई भी चीज शो ऑफ करना। ये डॉक्यूमेंट का व्यू, जैसे प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन में से आएगा। फिर एस्केप कर दो आप,
हट गया। वेब लेआउट, वेब लेआउट का मतलब है जब हम इंटरनेट पे ये डॉक्यूमेंट को डालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, उसका लेआउट खत्म हो जाता है। फिर एस्केप कर दो आप, या प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दो। फिर आउटलाइन में ये अलग अलग पॉइंट्स में अगर लेना हो आपको, एक पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। स्कोर मैं आपको बाद में इलोबरेट करूंगा। फिर ये रूलर अगर हटाना है, जैसे ये स्केल हटाना है तो इस पर क्लिक कर दो, लाना है तो इस पे आ जाओ। नेविगेशन पेन, ये नेविगेशन पेन है लेफ्ट साइड, इसमें ये बताता है कि आपको जैसे ये फिर जूम करना है 200%, कम करना है नीचे से भी कम कर सकते हैं, ऊपर से भी कम कर सकते हैं 100%, ये 100%। एक पेज में कोई चीज दिखाना है, दोनों पेज एक साथ दिखाना हो तो यहाँ पर है व्यू में 2 पेज, ये 2 पेज दोनों पेज एक साथ दिख जाएंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। पेज विड्थ सेट करना हो तो पेज विड्थ सेट हो गई इसके अकॉर्डिंग। फिर नई विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, इसको अपन आखिरी में देखेंगे। बस हमको ये न्यू विंडो में क्या होता है, नई फाइल बन जाती है। अरेंज ऑल में एक से ज्यादा फाइलें खुली हुई हो, एक से ज्यादा फाइलें ओपन हो तो वो एक के ऊपर एक आ जाती है। अब हम बेसिक से चलते हैं और पहले व्यू में सिंगल पेज करते हैं और इसको 100% करते हैं, 100%, ये 100% और यहाँ लिया। और अब जो जो ऑप्शन हमने देखे, अब हम होम से चलेंगे और अप्लाई करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं। देखें, हम सबसे पहले होम पे जाते हैं। अब होम में सबसे पहले ये होम लिया अपन ने, फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट का नाम है। ये इतने सारे फ़ॉन्ट, ये अलग अलग स्टाइल में वर्ड्स बताते हैं। नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये 2 यूज होते हैं। आप अपने हिसाब से और भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट का शेप और साइज आएगी वो यहाँ शो है। जैसे अल्जीरियन लेंगे तो अल्जीरियन इस टाइप से आएगा, एरियल ब्लैक लेंगे तो एरियल ब्लैक ऐसा आएगा, अल्जीरियन ये वाला लेंगे तो अलग आएगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा गहराई में डिफरेंस है। टाइम्स न्यू रोमन लेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये वाली चीज है, अलग अलग फ़ॉन्ट अलग अलग ले सकते हैं। हिंदी आप